All right, I am starting now. Can you see it? Yes, sir. Okay, yesterday we have seen the mean free path, which is the average distance between two successive collisions, which is depending upon these terms. And V is what? It is the number of particles per unit volume. We can call it particle density or molecule density, we can call it. All right. And then what is D? D being the diameter, and these two terms are deciding factor. Okay. So we had done one question, and rate of collision can be found out from this, or we can find out from this. इससे भी निकाल सकते हैं time period. In fact, rate of collision में भी √2, अगर rate of collision निकलना है, यहाँ भी √2 से multiply करना पड़ेगा. But because this derivation for was the mean free path, इसलिए end में उन्होंने changes किए. Rate of collision also we have to multiply by √2 if we want to find out the complete what is called, if all the values are given, and we want to find out the rate of collision, in that also √2 से multiply करना पड़ेगा. Otherwise conclusion drawn के लिए we have not changed the formula, है ना. So let's see one more question from our textbook. Only question, one question is given. At least 2 or 3 part we can do, which is based on mean free path. ठीक है? So let's see what is this. What is the question? ये वाला question है. Can you see? Yes, sir. At least first part or second part, 2 parts we should be knowing properly. Go through it, then we'll try to do it. What we need D, diameter is given है ना, radius is given, तो इसको 2 times कर लेंगे, and molecule density, this is not given है ना. So how to get this molecular density from the given values? बोले कैसे निकालेंगे molecular density? Can you tell me? देखो molecular density निकालने के लिए which formula we are going to use? Ideal gas equation. PV is equal to N into KB into T. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? N by V निकाल सकते हैं, which will be P by KB into T. Peak pressure is given 2 atmosphere, 2 into 10 to the power 5, है ना.
And what about KB? 1.38 into 10 to the power minus 23. Temperature is 17. It will make it 290. अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस n by v is nothing but nv, particle density, है ना, जो हमने सिंबल यूज किया है. टेक्स्ट बुक सिंबल इज n, but we are writing n for the number of moles, therefore we have changed the symbol. If we solve it, इसके कितने n by v, ये 5.1 into 10 to the power 25 आ रहा है. Calculation are very handy per meter cube, है ना. Now we have got all the other terms are given. 1 by root 2 pi d pi nvd square, है ना. ये होता है मीन फ्री पाथ. तो 1 by root 2 pi 3.14, nv is 5.1 into 10 to the power 25 d square, है ना. इसको डबल करना पड़ेगा, 2 into 10 to the power minus 10. A naught में एक्स्ट्रा में. If you solve it, solution is the problem. कितना आंसर दिया? 10 to the power minus 7 दिया. Quite a low value, है ना. 10 to the power minus 7 meter. It is 0.1 micron, 0.1 micrometer. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है 10th. इसमें और भी पार्ट है. कैन वी डू? यस, कुछ पार्ट और कर लेते हैं. जैसे जब पार्ट 1, पार्ट बी करने के लिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछे? कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम. नहीं, फ्रीक्वेंसी भी पूछिए. पहले यहाँ पर देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन. कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालेंगे, बिकॉज वो रूट 2 का जो है ना बाद में चेंज किया. तो वी विल फाइंड आउट कोलिजन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस कैलकुलेशन. टाइम पीरियड निकालते हैं. टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन निकाल लेते हैं पहले. उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. कौन सी वेलोसिटी? आरएमएस वेलोसिटी 3 RT अपॉन m नॉट. क्योंकि टाइम के निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड VRMS से व्हाट इज कॉल्ड डिवाइड कर देंगे. VRMS इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उसमें मीन भी लिया है, और मीन स्क्वायर्ड मीन वेलोसिटी है वो, उसका अंडर रूट स्क्वायर्ड ऑफ मीन वेलोसिटी है, और रूट लेके फिर VRMS है. तो दिस गिव्स यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स. तो 3 R कितना है? 8.3. 290. मोलर मास इज गिवन 28 ग्राम 10 to the power minus 3 भी करना पड़ेगा. यस सर, नो 3 करना पड़ेगा, -3, because it is in the gram, so we have to make it in kg. It is given 510 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट कर सकते हैं. आंसर में उन्होंने सॉल्व दिया है पीछे सोल्यूशन. नाउ हमें टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है. टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस में मीन फ्री पाथ ले लेंगे, स्पीड में VRMS. तो डिस्टेंस जो है मीन फ्री पाथ कितना आया? -10 to the power -7 है. स्पीड 510. तो इसको सॉल्व किया. टाइम इनका जो है 4 into 10⁻13 आंसर दिया. समथिंग इज रॉन्ग, है ना. 1 मिनट. टाइम पीरियड, टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स, टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स D upon VRMS
4 into 10 power minus 13 आएगा कैसे? I don't think something is गड़बड़. हो सकता है आंसर चेक करना पड़ेगा फिर से, because it is handwritten. नहीं 13 नहीं, इसमें आएगा आपका आंसर. मैंने यहाँ पे नोट किया शायद ये टाइम टेकन फॉर द कोलिजन. नहीं ये नहीं, दिस इज L upon V. हाँ 2 into 10 power minus 10. Yes, this is okay. It will come 2 into 10 power minus 7. नहीं minus 10 है ना. Yes, this is okay. 2 into 10 to the power minus. Let us see the answer. ये आंसर ठीक है. नाउ फ्रीक्वेंसी निकालते. फ्रीक्वेंसी के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ये आपका आएगा 2 into 10 to the power minus 10. तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे 10 to the power 10 upon 2. तो इसको 5 into 10 power 9 hertz. Hertz नहीं लिखते यहाँ पे, per second. So this is the answer. These parts we can do it. Other parts you can leave. ठीक है, clear? Time between two successive collision calculate किया हमने, which will be mean free path divided by RMS speed. तो 2 into 10 power minus 10 आ गया. और frequency of collision जो फर्स्ट पार्ट था, estimate the mean free path and collision frequency. इसको क्या बोलेंगे? collision frequency. ठीक है, तो that will be reciprocal of time period. Time between two successive collision का reciprocal होगा. Similar to the oscillation, we can use this formula. All right. Calculations are slightly lengthier, but we should know the proper method. How to get the, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, बट इसको यूज करके हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाला. अगर हम ये भी इससे भी निकाले तो आएगा, सेम आंसर आना चाहिए. कहाँ गया फ्रीक्वेंसी का? ये था रेट ऑफ कोलिजन. इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. गॉट इट? तो बट इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मीन फ्री पाथ, देन दिस इज द अदर मेथड टू गेट. वहां भी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले आपको. All right. So this is the only question of collision mean free path का. Now this we were doing है ना, कल हम लोग ये कर रहे थे. This is important. How to get the second part. Second part आया आपका. क्या पूछा था second part में उन्होंने? Is the RMS speed of the molecules the same in 3 cases? If not, in which case VRMS is largest? किसमें मैक्सिमम होगा? VRMS is, बोलो क्या फार्मूला है? अभी भी लिखा था हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. तो लाइट पार्टिकल्स का मोलर मास कम होगा. किसका कम होगा? नियॉन का. तो VRMS स्पीड विल बी मोर. Therefore, neon, light molecules will have more RMS speed. Heavy particles का same temperature and of course temperature, उसमें temperature भी आता है ना. VRMS is √3 RT by m0 है ना.
टेम्परेचर सेम है सभी में, अदर कांस्टेंट्स आर आल्सो आइडेंटिकल, तो इट इज द मोलर मास और दूसरा फॉर्मूला याद है तुम लोग को VRMS का, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल 3 kBt अपॉन मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे मोलर मास से वी कैन सी नियॉन हैज गॉट मिनिमम मोलर मास, तो इट विल हैव maximum RMS as compared to other two because inversely proportional to molar mass at same temperature. ठीक है? अरे there you are not responding. Yes, sir. तो ये important हो सकता है, ये पूछ सकते, इसमें कैलकुलेशन नहीं कराया उन्होंने, they not ask you to calculate, just use the formulas and conclude the answer, है ना? So these type of questions are always important. Okay, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, this particular question, how to do this question. How to do this question? देखो question go through. Thermally insulated vessels 1 and 2 are filled with air at temperature T1 and T2 and pressure P1 and P2 and volume V1 and V2. All three are different. If the valve joining the two vessels is open, यहाँ पे valve है, the temperature inside the vessel at equilibrium will be. So there will be the movement of gas particles from high pressure to low pressure, and then after some times it will become when you open the valve, it will become one cylinder and it will acquire some common temperature and common pressure, and temperature is asked. What is the temperature? Common temperature after some time, or final temperature we can call it, at equilibrium. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बोलो? Can somebody give the clue? Let T be the final equilibrium temperature. How to get the value of T? Which of the answer will be correct? This one, this one, this one, or this one? Can somebody just a second, I will try it out. Just what to do? Sir, I'll try it out. How to solve this? I'm asking you. I'm not asking the final answer. I'm asking you how to do this. Anybody can tell? No, insulated vessels है ना? Insulated vessels and sealed vessels है ना? Sealed है. तो एक तो number of moles will remain constant. पहले सपोज इसमें n1 है, इसमें n2 है, बाद में सम विल, इसमें n1 डैश हो जाएंगे, इसमें n2 डैश हो जाएंगे ना, बट टोटल विल बी इक्वल. इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स will be final number of moles, but this is not going to work here. This particular point is not going to work. It may work somewhere. इससे नहीं होगा. Any other idea? Insulated vessels, heat is neither going out nor coming in. No heat transfer. तो उससे क्या होगा फिर? Since So the hot object will transfer the heat to the cold object. okay, hot object, but ये object नहीं है ना, gases है यहाँ पर, है ना? Yes. तो उसमें वो तो हमने principle of calorimetry we are used in the solids and liquid, but यहाँ पर एक तो स्पेसिफिक हीट की प्रॉब्लम आ गई है ना, कौन सी गैस है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर विल नॉट वर्क हियर. वी हैव टू थिंक डिफरेंटली.
We have to think differently. Any other idea? Since vessels are insulated, single रहता है ना, are insulated. Therefore, no heat transfer. Therefore, sum of internal energy will be constant. It will not change. So U1 plus U2 is equal to constant. ठीक है? Or if something is constant, so change will be zero. Total change will be zero. एक का बढ़ सकेगा, एक का बढ़ेगा, दूसरे का घटेगा, है ना? तो टोटल चेंज विल बी जीरो इफ समथिंग इज कांस्टेंट, है ना? सपोज दोनों की मिला के, सपोज दिस इज हैविंग 100 जूल्स, दिस इज हैविंग 200 जूल्स, टोटल इज 300 जूल्स, तो चेंज विल बी जीरो, नो चेंज। इसकी सपोज 100 थी तो 150 हो गई, सपोज 50 बढ़ गई, और इसकी कम हो जाएगी 50, जितनी इसकी बढ़ेगी उतनी कम हो जाएगी, तो टोटल विल में, तो चेंज विल बी जीरो। नाउ चेंज ऑफ इंटर एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, N1 CV delta T plus delta T1, N2 CV delta T2 is equal to 0. तो CV हमने, because both are same gases, एयर है, तो उनका मोलर, CV is what by the way? CV is the molar specific heat at constant volume. तो for particular gas it will be same. कितनी होगी by the way? एयर की CV होगी कितनी? एयर की CV कितनी होती है? डायटोमिक लेते हैं एयर को, तो कल हमने पढ़ा था FR/2 समथिंग, है ना? F विल बी, डायटोमिक में F कितना आएगा? 5R/2। अगर हमें लिखना पड़े, बट यहाँ तो कैंसिल हो रहा है ना? अगर सपोज बोलेंगे A1 इज एयर, अदर इज ऑर्गन और नियॉन गैस, तब एक का CV और दूसरे का CV अलग होगा, है ना? तो वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ R, यहाँ पे गेटिंग कैंसिल। N1 को क्या लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में? PV is equal to nRT से, PV is equal to nRT से N will be how much? PV by RT। ये हो जाएगा P1 V1 by R, तो कैंसिल होने वाला है एनीवे, T1। डेल्टा T को क्या लिखेंगे? चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल T1 था, और इसको क्या लिखेंगे? P2 V2 अपॉन RT2, और इसमें भी फाइनल चेंज में फाइनल माइनस, लॉस एंड गेन में हमें देखना पड़ता है। लॉस में क्या लिखते हैं? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, गेन में इनिशियल माइनस फाइनल, बट चेंज में हियर इट इज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। बी केयरफुल व्हाट आई एम टेलिंग यू, चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल, हियर आल्सो फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस एंड गेन में देखना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हमने देखा था, लॉस में क्या लिखेंगे? हाई टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, गेन में फाइनल टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। बट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के भी क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल चेंज इज जीरो, तो उसमें भी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर रहेगा। तो सॉल्व कर लो, आर राइट साइड में जीरो है, तो आर इज गेटिंग कैंसल। T के लिए सॉल्व करना है, बिकॉज T वी हैव टू फाइंड आउट। P1 V1 by T1 इंटू T, यहाँ पे P1 V1 बचेगा, इधर P2 V2 by T2, ये T से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे P2 V2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे T कॉमन ले लिया हमने, P1 V1 by T1, P2 V2 by T2, माइनस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दिया, P1 V1 प्लस P2 V2, तो इसको नीचे भेज देंगे अभी, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 V1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by T2। ये फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं या एलसीएम ले लो।
एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, P1 V1 प्लस P2 V2, यहाँ पे T1 इंटू T2 आ जाएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज जनरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, but it is good question to learn how to tackle the problems of such problems. Anything you want to clarify here? इसमें कुछ आपको पूछना है? यहाँ पे लिखेंगे और। यहाँ पे जीरो क्यों है? बिकॉज कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, जीरो चेंज होता है। राइट साइड कांस्टेंट तो नो चेंज, इसको चेंज किया हमने, ये भी चेंज किया, बट कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा। इट मींस वंस एक की एनर्जी बढ़ेगी दूसरे की घटेगी, टोटल टोटल जो है नो चेंज। ठीक है, तो दिस कैन बी मोर यूजफुल फॉर जेई एंड नीट। No problem. Or do you want to ask anything? Okay. देखो ये क्वेश्चन भी जनरली दे आस्क इन जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। इफ 1 mole of the monatomic gas जिसका गामा दिए है is mixed with 1 mole of diatomic gas whose gamma is 7/5, कल हमने ये सीखे थे। देखो yesterday we learned this, the value of gamma for the mixture। तो ये देखो एक सिलेंडर इसमें मिक्स कर दिया एक सिलेंडर के अंदर, तो ये फार्मूला बनता है गामा ऑफ मिक्सचर निकाल, दोनों का अगर हम दोनों का मिक्सचर का गामा निकालना चाहे तो ये फार्मूला बनता है। दिस अगेन कम्स फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी, अगेन कम्स, इसको मैं डेरिवेशन वी आर नॉट डूइंग, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका कितना 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो 1 + 1 ऊपर, और यहाँ पे गामा ऑफ मिक्सचर वी हैव टू फाइंड आउट -1 and 1 is 1। फर्स्ट गैस इज 5/3 गामा उसका, सेकेंड वन इज 1/7/5 -1। तो देखो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3/2, ये 5/2। ठीक है, और इधर 2 गामा मिक्सचर -1। तो सॉल्व इट एंड टेल मी। So this is coming how much? 8/2 है ना, 4, और ये इधर आ गया 2। तो 2 को नीचे ले आते हैं 1/2, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज कमिंग 3/2 है ना, गामा मिक्सचर इज कमिंग, 1 इधर आ जाएगा, 1 + ½ विल बी 3/2, 1 + ½ है ना 0.5, इट विल बी 1.5। तो बी ऑप्शन है। Is there any problem? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, अच्छा ओके ठीक है। तो ये फार्मूला देखो इंटर एनर्जी से मैंने प्रूव किया था, यू डोंट नीड द प्रूफ ऑफ दिस,
लेट मी सी, डू आई हैव हियर, यहाँ पे देखो, total energy will remain will be added up, U1 plus U2, है ना? और after temperature, देखो they are kept in cylinder, है ना? तो they will settle at certain temperature T, है ना? टेम्परेचर T पे सेटल हो गए, तो दोनों की जो इंटरनल एनर्जी, दोनों की एनर्जी होगी वो एडेड अप हो जाएगी. जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ डू वी गेट दिस रिलेशन, U1 plus U2 इंटर, तो U1 फर्स्ट गैस का N1 CV1 into T and U2 N2 CV2 into T, और इसको मिक्स, अगर हमें इसको एज ए मिक्सचर का निकालना है, इट विल बी, दोनों ऐड कर दिया N1 plus N2 CV मिक्सचर into T, TT गेटिंग कैंसल. अच्छा, CV का एक फार्मूला और होता है, CV का ये R अपन गामा -1 भी होता है. CV इज, अगर तुम if you use this relation Cp minus Cv is equal to R and Cp upon Cv is equal to gamma, इन दोनों को यूज करो तो Cv का ये रिलेशन भी आ जाता है, यूज करके ये निकाल सकते हो तुम, है ना, यूजिंग बोथ इक्वेशन, ये 1 है ये 2 है, तो ये आता है, ये हमने नहीं किया था, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, Cv की वैल्यू R अपन गामा -1, ठीक है, और यहाँ पे गामा 2 -1 हो जाएगा, और इधर तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, R, तो ये फार्मूला बन जाता है. Alright, so this is purely for JEE and NEET examination. इसमें अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, फाइंड आउट द CV ऑफ द मिक्सचर, CV ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला बनेगा, CV ऑफ द मिक्सचर में N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे फार्मूला बनता है. CV लेकिन आपको पता होना चाहिए मोनोटॉमिक का कितने कलम ने टेबल बनाई थी, तो उसके लिए ये फार्मूला बनाया हुआ है मैंने, देखो अगेन JEE and NEET के लिए, this is only for JEE and NEET students, no other. फिर से इसको हमने दूसरे फॉर्म में डिराइव किया, अगर हमें CV ऑफ द मिक्सचर निकालना है तो ये फार्मूला बनता है, और CP ऑफ द मिक्सचर निकालना है तो ये फार्मूला बनता है, ये वाला. और गामा ऑफ द मिक्सचर निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये फार्मूला बनता है. इससे भी अगर आप निकालो वो क्वेश्चन सेम आंसर आएगा, बट provided you must know how much is the CP for, I mean CP for the monatomic gas and diatomic gas का टेबल उसी के लिए बनाई थी, so that if you require you can put it CP and CV for monatomic gas, diatomic gas, polyatomic gas, है ना, तो that table you can refer and do it. Okay. So that question sometimes are asked, but more focus always remains whatever there is in NCERT book. 90% questions are asked from NCERT, 10% will be like this, which are not given in NCERT book. Okay. All right. Yes, sir. So ये NEET and JEE में use कर सकते. That's all. Now we will be revising the things, thermal expansion and conduction. I mean transfer of heat. तो इसमें थोड़े से डेमो मेरे पास हैं, और if we can see that and then